Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter Brick, Beads and Bone. My dear student, when I am telling brick, beads and bone, you should understand that what we are going to read. We are going to read the first chapter, Indus Valley Civilization. In this chapter, the different topics that had explained by me in the previous classes. Today, we will try to understand the next topic, which is very important for your exam. Topic is the Indus economy. As you remember that I told you in my previous class, Indus economy. Indus economy. Economy. Where in my previous class, I divided into two parts, Indus economy. First, agriculture and pastoralism, and second, trade. Trade, agriculture and pastoralism. We had discussed in the starting of this class. I would explain little bit about that points. Today we will focus the next point, trade. In trade, we will read what? Art and craft, art and craft production, art and craft production, and other art and craft production. Then also what we read, as for the matter of the trade, we connected the other topic, like which topic? The luxuries and the burials. Luxuries and burials. Burials it means जो उस समय कब्र में, ग्रेव्स में इन दो, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में जो ग्रेव्स मिले, उन ग्रेव्स में क्या प्राप्त हुआ और उनके जो हमें रिसोर्स, जो हमें थिंग्स मिले, गुड्स मिले, उनके आधार पे हम सोशल कैटेगराइजेशन को भी समझ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लग्जरीज. दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दो चीजें मालूम चलेंगी. हम दो चीजों के बारे में क्लियरली जान सकते हैं. किन चीजों के बारे में? कहता है एक सोसाइटी के बारे में और दूसरा सोसाइटी के साथ साथ वो किन चीजों का यूज करते थे. I mean to say that what things they used in their common life. अपने कॉमन लाइफ में वो क्या चीज पहनते थे, खाते थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, इन्हें भी हम आज इस चैप्टर में जोड़ लेंगे. तो अगर इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके चलें तो हम टोटल ग्राउंड में हम इकोनॉमी को समझ सकते हैं. ओके, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दैट एग्रीकल्चर एंड द पास्टोरलिज्म. एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी. एग्रीकल्चर के बारे में मैंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारे साइट्स, all the sites which was situated in near the river bank, so that's why it is very easy for the Indus Valley civilization people to क्या करने के लिए? अपने खेतों को जोतने के लिए. It is easy for them कि खेतों में अच्छी जुताई कर लें. इरिगेशन फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल थी. और हमने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था
कि डी डी कौशाम्बी का वो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था जहां वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल, दे डोंट नो अबाउट दैट द प्लाव, दे डिडंट यूज इट, बट एज फार एज द मैटर ऑफ देयर स्टेटमेंट, in the light of the excavations, in the light of the archaeological findings, which we can say that the statement which was given by D.P. Agrawal, that is totally wrong. Why? Because the terracotta log that was found from not one place, Bahawalpur, Cholistan and Banawali, Hisar, Haryana in India. So these two places proved that they used the plough field. And even we had the finest example of the Kalibanga. In the excavation of Kalibanga, we find that the plough fields, जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हमें. And other evidences एग्रीकल्चर के, हमने कहा कि they uses the proper irrigation facilities. They had the proper irrigation facilities. No doubt to say that कि नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इन्हें फर्टिलिटी पर्याप्त थी, जमीन उर्वर था, फर्टाइल लैंड थी इनके पास, नदियों के दुआबे में स्थित थे ये लोग, तो जमीन की उत्पादकता ऑलरेडी ज़्यादा थी. तो जमीन उत्पादक तो थी ही, साथ ही साथ तो हम लोगों ने बात की कि दो जगह से हमारे पास फाइनेस्ट एग्जाम्पल थे जिसके आधार पे हम लोगों ने कहा कि वो लोग प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी यूज करते थे. कौन कौन सी इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में बात की थी हम लोगों ने? अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एक्सेप्शनल केसेस में सोर्ट हुई से एक केनाल मिला, हमें वाटर टैंक मिले धौलावीरा से, और ये वाटर टैंक ये प्रूव करता था रिजर्वायर के रूप में कि ये पानी का इस्तेमाल करते थे. इसके अलावा हमने बात की इम्बैंकमेंट में, अल्चिन को, फेयर सर्विस को एक इम्बैंकमेंट मिला, एक तटबंध मिला. कहां से? आई मीन टू से दैट कि दैट प्लेसेस कि बलूचिस्तान प्रांत से उन्होंने तटबंध बना करके पानी को रोक करके सिंचाई किया. और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि नेक्स्ट में कि किस तरीके से आगे के प्रयोजन उन लोगों ने सेट किए, बनाए. इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उन लोगों ने कुओं का भी सहारा लिया. तो टैंक, वाटर टैंक, कैनाल्स, रिवर और वेल, जो कुएं थे, उन लोगों से इन लोगों ने सिंचाई के संसाधनों का यूज किया. प्लाऊ उनके पास थी ही, उनके पास हल था ही. ये हल किसके बने थे, इस पे तमाम सारे विवाद हैं. कुछ लोगों ने कहा कि ये वुडन प्लग थे, कुछ ने कहा ये कॉपर या ब्रोंज से बनाए गए थे. जैसा कि आयरन अवेलेबल नहीं था, तो आयरन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हम इन दोनों से ही बने हल का प्रयोग ये मान सकते हैं. फार्मिंग में मैं बहुत सारे सीड्स के बारे में बात किया. मैंने कहा था कि वाट, गेहूं, जौ, wheat, barley, that is the main prominent farming seeds for the Indus Valley civilization people. Even if they grown the other seeds also, just lentils, masak melon, watermelon, dates, cotton, and such type of others. They were veg and non-veg both. दोनों खाना खाते थे वो, और इसलिए इन चीज़ों का वो यूज किया करते थे. फिर मैंने पास्टोरल इंडस्ट्री के बारे में बात की और मैंने वहाँ कहा था कि इनके पास तमाम सारे पशुओं के हमें एविडेंस मिले, पशुओं की जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले. प्रोटोसिवा के एक सील पे देखें तो हमें जो छोटी छोटी प्रतिमाएं मिल रही हैं, छोटे छोटे जो सिंबल रूप में राइनोसोरस, एलिफेंट, पैंथर और टाइगर लाइक एनिमल, बुल, डियर एंड दीज टाइप ऑफ एनिमल्स, क्रोकोडाइल्स, पिजन्स, ईगल, ऑक्सेन, यूनिकॉर्न, अ लॉट ऑफ एनिमल्स, स्नेक आल्सो. तो वो लोग पहले तो इन सारे जानवरों से परिचित थे. एलिफेंट, हाथी के पालने के साक्ष्य वहां से प्राप्त हो चुके हैं. कैमल्स, एस, ऊंट और गधे की हड्डियों के अवशेष मिले.
घोड़ा वहां था कि नहीं, इस बारे में इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मत है कि नहीं है। विश्व में सर्वप्रथम हॉर्सेस के एविडेंस साउथ यूराल क्षेत्र से मिलता है। भारत में जो घोड़े के पालने की प्राचीनता है, घोड़ा कब से पाला गया भारत में, कब से घोड़ा पेट बनाया गया, इसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे, वो स्वात घाटी सोयाट के गालीघाई से मिलता है। गांधार कब्र संस्कृति के स्थल कटेलाई से घोड़े की एक ब्रॉन्ज मूर्ति मिलती है, कांस्य मूर्ति मिलती है। बलूचिस्तान के इराक से प्राचीनतम वास्तविक घोड़े के जीवाश्म मिले। 1850 बीसी में अनातोलिया से घोड़े की प्राचीनतम अभिलेखिक इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है हमें। 1850 के अनातोलिया से हमें जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है घोड़े के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सैंधो सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली, दांत मिले। मालवड़, कुंतासी, शिकारपुर से भी घोड़े की अस्थियां की प्राप्ति हुई। ब्रिगेडियर रास ने प्राग खड़प्पाई स्थल राना घुंडई से घोड़े के दांत की प्राप्ति की, जिसे अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया। लिटिल हड़प्पा का एक प्लेस है भगवानपुरा, जो पेंटेड ग्रे वेयर की साइट्स है। हस्तिनापुर से भी घोड़ों की हड्डियां मिली। चैलकोलिथिक इनाम गांव से घोड़े के प्रमाण मिले। महुआ झारी, नायकुंड के महापाषाणिक या मेगालिथिक जो कब्र थे से लोहे की बूटी और तांबे के आभूषणों से सजे घोड़े के अवशेष मिले, जो घोड़े को सेक्रीफाइसेस का एक अच्छा उदाहरण है। साउथ कर्नाटका के हल्लूर से घोड़े की हड्डियां मिली। तो इस तरीके से हमें तमाम सारे एविडेंस घोड़े के मिलते हैं। हमने पूरे घोड़े की हिस्ट्री बता दी, कहाँ से कब घोड़ा मिला। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसी के साथ साथ 2 अन्य पशुओं के भी साक्ष्य के बारे में बात करना जरूरी है। वो है ऊंट। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सूतकोतला से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो के से व्हीलर को एक संपूर्ण ऊंट का, एक कंप्लीट ऊंट को ही दफन किए जाने की अवस्था में प्राप्त हुआ। और हाथी के दांत मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोतड़ा आदि से हाथी के दांत के अवशेष मिले। हाथी के दांत का पैमाना मिला। मोहनजोदड़ो से हाथी का एक कपाल खंड भी प्राप्त हुआ। हाथी दांत से बनी हुई जो पुरुष आकृति भी इनको मिली। लोथल से संपूर्ण हाथी दांत प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप एनिमल पास्टोरेज इंडस्ट्री को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिनके आधार पे हम इन बातों को कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने तमाम सारी बातें कर ली एग्रीकल्चर की और पास्टोरेज इंडस्ट्री की। आज हम फोकस करेंगे ट्रेड को और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन को, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री को। तो पहले अगर आप बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री या ट्रेड को, पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड 2 तरीके के हैं, एक एक्सटर्नल ट्रेड, और दूसरा इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, इसी को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड जो कस्बों से, गांवों से होते थे शहरों के बीच, इट मीन्स विलेज टू टाउन एंड टाउन टू सिटी, विलेज टू टाउन एंड टाउन टू सिटी। ये जो व्यापार चल रहे थे निरंतर सत्वरगत से, ये हो रहे थे। अब इसके लिए ट्रेड के लिए एक चीज और जरूरत थी, वो थी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड के लिए
ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या माध्यम था? ट्रांसपोर्टेशन, अब यहीं पे इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक लैंड रूट और दूसरे को दो पार्ट में तोड़िए, एक रिवर रूट और दूसरा हम बात करेंगे तो कहता है सी रूट, लैंड रूट एंड सी रूट, बेसिकली टू रूट्स दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड। तो कहते हैं इसमें जो सी रूट्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय की। इट इज द बेस्ट मीडियम टू कनेक्टेड द एक्सटर्नल कंट्री, जो बाहर के फॉरेन कंट्री थे उनको जोड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम था। तो अब हमारे पास ये मोड मिल गए। अब इनके साथ साथ जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें यूज हो रही हैं, क्या हमारे पास क्या है? लोथल से एक सील मिली, जिसपे क्या है? बोट की आकृति है, एक नाव बनी हुई है, एक सिलेंड्रिकल सील है, और फिर दूसरा मैं आपको एक एक दिखाता हूं, विच इज गिवन इन योर बुक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि किस तरीके से ये शेप आप देखिए बुक में आप अपने। आई होप यू कैन इजली ऑब्जर्व दैट। इस सील पे आपको एक बोट की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एंड देन आफ्टर आई विल शो यू नेक्स्ट पिक वेयर यू सी द व्हाट मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बैलगाड़ी, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी है। तो ये जो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं, आई होप यू आर इजली ऑब्जर्व कि मिट्टी की बनी बैलगाड़ी है, दो बैल जुटे हुए हैं और पहिए, उसमें कोई भी स्पीयर नहीं है, तीलियां नहीं है उसमें। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अब इनके जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है, बुलक कार्ट, इसके अलावा एनिमल्स का यूज करते रहे होंगे ये लोग। एनिमल्स में कौन कौन? तो कहता है डंकी, एस एंड camels also and such type of others। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इंडस में जो पहिया मिला, जो बैलगाड़ी का पहिया जो लगे हुए हैं, वो क्या है? ठोस पहिए हैं, ठोस पहिए हैं। ये स्फेरिकल नहीं है, ये पहिए कैसे नहीं है? इन पहियों में तीलीदार पहिया नहीं है, बल्कि इंडस के जो पहिए हैं वो ऐसे हैं। दैट इज इंडस में। और ये कब का है? ये वैदिक। तो यहां पे पहियों का इस्तेमाल ऐसे करते थे। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन का मोड। इससे वो लोग व्यापार करने में इनको सुलभता होती होगी। बैलगाड़ी के माध्यम से इंटरनल ट्रेड को कनेक्ट करते होंगे, शहर में आसानी से प्रवेश करते होंगे। इसके तमाम सारे एविडेंस हमारे पास पड़े हुए हैं। अब ये तो हुआ हमारा ट्रांसपोर्टेशन की बात, ये तो ट्रेड के इन स्टार्टिंग चीजों की बात की है। अब इस ट्रेड में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है
कि इनका व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था, ट्रेड। तो व्यापार को समझने के लिए आपको कई सारी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक संरचना थी वो व्यापार वाणिज्य पर ही डिपेंड थी। इट मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स पे ही बेस्ड थी। द मेन सेंटर ऑफ द इकोनॉमी दैट वाज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड एंड कॉमर्स उसका बेस था और इस चीजों के आधार पे वो व्यापार करते थे। इन चीजों में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण थी, तो अगर आप ध्यान देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस, अगेन द वेरियस टाइम, बहुत सारी बातें हमने इस पर बात की। हमने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक संरचना में व्यापार एवं वाणिज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। एक्सकवेशन में जो हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए, उनके एनालिसिस करने के बाद हमें यहाँ के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का जो फीचर था और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड थे, उन सारी चीज़ों पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन trade and transportation, that is the main elements for the external trade. I mean to say that the economic activities. And second thing, the raw materials. Raw materials that came from where? Village to town, village to town, and town to city. Then after, the weight and measurement. Weight and measurement. Weight and measurement. On the basis of that, you can what? Without it, the trades that cannot run properly, that cannot smoothly run. तो वेट एंड मेजरमेंट, वेट में क्या था, कहते हैं कि 1:2:4:8:16:32:64, देन आफ्टर 320, एक लंबा क्रम जा रहा है। एंड एज फार एज द मेजरमेंट, दे uses Indus Valley civilization people, they used bartering system. तो यहाँ पे बार्टरिंग सिस्टम क्या था, वस्तुओं को एक साथ ले जा, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना और दूसरी वस्तु के बदले बिकना, मतलब वस्तु का विनिमय, एक्सचेंज करना। तो यहाँ अब देन आफ्टर वी हैव एविडेंस मेजरमेंट के लिए क्या मिला हमारे पास, सेल्स एंड टस्क, ये हाथी के दांत का और सीपी का बना हुआ पैमाना मिला। तराजू तो बहुत कम मिले, लेकिन जो ये स्केल मिला हमें, स्केल्स, ये इन दोनों चीजों से बनी हुई थी। तो इनके बनने के आधार पे, इन सेल्स के बनने के आधार पे, इन जो तराजू, इसके आधार पे हम इस समझ सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, there were towards mode, what? The land route and sea route. So sea route, that was the cheapest mode. That was the cheapest mode. सबसे आसान मोड था, कम पैसे का मोड था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैंने आपको दो पिक भी दिखाए, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से
मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी मिली, और फिर मैंने आपको दिखाया कि लोथल से सील पे, सिलेंड्रिकल सील पे बोट की आकृति मिली। तो ये तो क्लियर था कि एक्सटर्नल और इंटरनल व्यापार होते थे। दिलमुन, मेलुहा, मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते थे। दिलमुन, माकन, मगन जिसमें लिखा हुआ है दिलमुन, और दिलमुन का मतलब बहरीन, मगन का मतलब ओमान, आपके बुक में है। इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट योर एनसीईआरटी बुक, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट द ओमानी जार, what was the use of that jar? It is not clear. Why? Because there was no liquid that was found in that pot, that jar. The different potteries that are also found in Indus Valley civilization sites. सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न स्थानों से इस तरह के जार और पार्ट्स मिले। इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से इन चीज़ों का यूज किया करते थे। तो एक तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को, अब इन चीज़ों के आधार पे वेट एंड मेजरमेंट को समझने का प्रयास करिए। हमने आपको 3-4 चीजें क्लियर, पहले मैंने कहा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थी। रॉ मटेरियल्स विलेज से आती थी टाउन, और टाउन से सिटी, और यहीं से प्रोडक्शन होकर के सिटी से प्रोडक्शन होती थी। सिटी में प्रोडक्शन होता था और प्रोडक्शन के बाद वो बाहर जाती थी। इट मीन्स सिटी के अंदर कौन रहते होंगे? एक आर्टिसियन ग्रुप रहता होगा जो शिल्पी थे, जो वस्तुओं का निर्माण करते होते। इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वाज डेवलप्ड इन द सिटी पोर्ट एरियाज। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्री, आई मीन टू इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज चनहुदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, लोथल, इवन हड़प्पा आल्सो। In Mohenjo-daro you can see that such type of things. The granary that was found from the Mohenjo-daro and the Harappa also. तो यहाँ से ग्रेनरी भी मिले, यहाँ से रहने के साधन भी मिले, और इस आधार पे आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं जो बातें मैंने आपसे कही। तो ये वो चीज़ें हैं, ये बेस है जिनके आधार पे आप व्यापार लिखेंगे। वेट एंड मेजरमेंट, आप डेसिमल सिस्टम पे आप देखिए रेशियो का 2 के गुणित अनुपात में है। 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बढ़ रहे हैं। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 32, 64 एंड सच टाइप ऑफ अदर्स, लास्ट 20 एंड देन आफ्टर। फिर आप इनके साथ साथ मैंने आपको कहा कि सेल से और हाथी के दांत के बने हुए जो पैमाने मिले, तो ये जो पैमाना मिल रहा है, ये जो हाथी के दांत के बने हुए सेल्स की आकृतियां मिल रही हैं, इसमें स्केल का यूज करते थे। इवन दे डोंट हैव the coins, so that's why they uses the bartering system. And one more important, the seal का यूज करते थे अपने वस्तुओं पे। कॉटन के जो गांठ थे या जो सामान वो भेजते थे उस पर सील और अपनी मुहर लगाते थे, मुहर बंद करके भेजते थे, कोई उनका मिसयूज ना कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू माय डियर स्टूडेंट। तो जो मैं कह रहा हूं, जिन पॉइंट्स को हमने आउट किया, आप इनके आधार पे ट्रांसपोर्ट को लिख सकते हैं। अब इन चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का, मैंने आपसे कहा था, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट द इंडस इकोनॉमी, हैविंग सीन द इंडस इकोनॉमी, वी कैन से दैट दे वर प्रॉपर डेवलप्ड, दे यूजेज द डिफरेंट टाइप ऑफ द लग्जरियस गुड्स। When we will connect the luxurious goods, luxurious life of the Indus Valley peoples, you can easily understand that which type of life they enjoyed in that time. I mean to say Indus Valley, किस तरीके का जीवन वो जीते थे। अगर उन चीज़ों को देखें, अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें, उद्योग को देखें, तो कहता है कि खेती के अतिरिक्त कृषि के फार्मिंग, अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट द फार्मिंग के अतिरिक्त और भी किसी चीज थी, ये ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण था। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें अगर उन चीजों को देख करके, तो इनके वस्तुओं को हड़प्पी सभ्यता में लगभग सभी वस्तुओं में एक बहुत ही अपूर्व मानकीकरण किया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। और यह स्पष्ट रूप से कहना कठिन है कि वहां एक केंद्रीय सत्ता रही होगी कि नहीं। तो हड़प्पा के लोग सिटी में रहते थे, हड़प्पा के लोगों का अपने सिस्टम, अपनी एक पूरी व्यवस्था थी, और इस तरीके से प्रॉस्परस लाइफ जीते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब बात करिए कि हड़प्पा के लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे अपनी लाइफ में, क्या क्या वो कौन कौन सी चीज़ों को देखते थे। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू विल
see, if you will focus that the things which is very important in trade, कि कुछ चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी, कुछ चीज़ें अंदर से मंगाई जाती थी, लोकल प्लेसेस से मंगाई जाती थी। मैंने आपसे कहा कि श्रीमती नवजोत लाहिड़ी ने एक लंबी लिस्ट बनाई। नवजोत लाहिड़ी ने उन प्लेसेस को क्या क्या सॉर्ट आउट किया, वेयर द डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट थिंग्स दैट मंगाई जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े पैमाने पे हो रहे थे, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की व्यवस्था थी और वस्तुओं को मंगा करके रॉ मटेरियल्स को कंप्लीट फॉर्म में तैयार करके बाहर भेजने की जो व्यवस्था थी, यूनिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कॉटन इंडस्ट्रीज प्रॉपर डेवलप फॉर्म में थी। वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज द टॉपिक ट्रेड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट दैट इज द वेरी लॉन्ग, वेयर वी सी कि किस किस वस्तुओं को कहाँ से मंगाई जाती थी, कौन कौन चीजें कहाँ से मंगा करके उनका व्यापार में, प्रोडक्शन में उनका यूज किया जाता था। तो इन चीजों को यदि आप देखिए तो आपको पूरा एक प्रॉपर सिनेरियो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे लगेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप समझ गए होंगे कि हम किन चीजों पे बातें कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ढेरों बातें करेंगे इन चीजों पे, इकोनॉमी पे, ट्रेड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट पे, लग्जरीज पे और बरियल्स पे। गुड बाय एंड टेक केयर।